Okay, so in the last session, we completed theory part of oscillation chapter, and from today we are going to start, from this session we are going to start with numericals. First we'll go through solved examples and then we'll go through exercise numericals. तो पहला एग्जाम्पल आपको बोला है a body of mass 0.2 kilogram performs linear simple harmonic motion. It experiences a restoring force of 0.2 Newton when its displacement from the mean position is 4 centimeter. So restoring force of 0.2 Newton is at x equal to 4 centimeter. Determine force constant, period of SHM, acceleration of the body when its displacement from the mean position is 1 centimeter. So basically, in the given quantities, you have mass, which is 0.2 kg. Force, restoring force is 0.2 Newton at x equal to 4 centimeter. 4 centimeter you need to convert into meters, right? And then you're supposed to find out one, that is force constant K. Two, you're supposed to find out period of SHM. And three, acceleration A at x equal to 1 centimeter. So it's pretty simple thing, क्योंकि हमको पता है restoring force F is equal to minus kx. So F is equal to just kx magnitude wise. If you are not talking about direction here, so just magnitude wise is kx. So k is F by x and F is 0.2 Newton upon x is 0.04. So 0.2 upon 0.04 is 5 Newton per meter. तो ये आपको मिल गया पहला फोर्स कांस्टेंट. टाइम पीरियड का इक्वेशन आपको याद होना चाहिए 2 पाई अपॉन ओमेगा या फिर 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ के बाई एम, मतलब m by k, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ के बाई एम होता है, राइट? सो वी नो मास that is 0.2. We know k, we have already found out there, 0.2 by 5. इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो ये आ जाएगा 2 into 10 power minus 1 upon 5. Okay, so you just have to do 1 by 5. You know 1 by 5 is 0.2. तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, and after you solve this you will get 0.4 pi s, right? Simple. Pi second, 0.4 pi second. So last, you are supposed to find out acceleration at x equal to 1 centimeter. We know acceleration is minus omega square x. We know that is k by mx, because omega square is k by m. We know the values of k, which is 5. We know the value of m, which is 0.2. We know that they are asking us to find out at x equal to 1 centimeter. That means 0.01, right? 1 centimeter पे पूछा है ना, तो 0.01 मीटर. तो दिस इज प्रीटी सिंपल. देन तो पॉइंट्स जो है, डेसिमल जो है, जस्ट हैव टू गेट रिड ऑफ दैट. तो इट विल बी समथिंग लाइक, you will get this minus 5 into 10 power minus 2 upon 2 into 10 power minus 1. 1 by 2 is 0.5 again. तो 5 into 0.5 into 10 पर minus 2 और ऊपर जाएगा तो 10 पर plus 1 हो जाएगा, तो 10 पर minus 1 बचेगा in short. So that will be around 5 into 5 25 और 10 पर minus 2. So 0.25, ये आंसर आना चाहिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Okay, so this should be the answer, and it is the answer. In your textbook it is given wrong. उनमें acceleration भी, अच्छा, okay, one thing is again here, एक चीज important है, acceleration of the body when its displacement from the mean position is 1 centimeter, right? ये अच्छे से पढ़ लेना एक बार, क्योंकि बहुत बार ये लोग आपको बोलते हैं displacement from extreme position. Okay, तो ये भी एक चीज आपको कंसीडर करनी पड़ेगी.
राइट. इन योर टेक्स्ट बुक द आंसर इज गिवन रॉन्ग फॉर एक्सेलरेशन बिकॉज उन्होंने 4 सेंटीमीटर पे कैलकुलेट किया है और पूछा 1 सेंटीमीटर पे है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Let's move to next question. A particle performs linear simple harmonic motion of period 4 seconds. So you have been given that time period of this SHM is 4 seconds and amplitude capital A is 4 centimeter, which is 0.04 meter. Find the time taken by the particle to travel a distance of 1 centimeter from positive extreme position. जैसे मैंने आपको बताया कि sometimes they tell you that the particle the displacement is measured from the mean position. कभी कभी बोलते हैं कि from positive extreme position. तो ये ध्यान देना words पे. तो first of all you know कि what is displacement from the mean. मतलब मैं डायग्राम से बता देता हूँ. This is let us say A B. This is mean position O. ये एम्पलीट्यूड जो है ये 4 सेंटीमीटर का है और पार्टिकल यहाँ पे है एट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सट्रीम. मतलब बेसिकली A-1 तो 3 सेंटीमीटर होगा वो. सो A-1 सेंटीमीटर दैट इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम मेन पोजीशन. तो 3 सेंटीमीटर फ्रॉम मेन पोजीशन पे है वो पार्टिकल. ओके, तो this is not to be found out, it is in the given quantity, doesn't matter really. फाइंड क्या करना है हमको? फाइंड करना है टाइम टेकन. टाइम टेकन बाय इट टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम. मतलब x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन इज सिंपल. टाइम पीरियड दिया है आपको, एम्पलीट्यूड दिया है और आपको पूछा है कि एक्सट्रीम से पॉजिटिव एक्सट्रीम से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, राइट? मतलब x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पे होगा वो. दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. You can solve it in 2 different ways. एक, let's see if both of these methods have same answer, give us same answer. एक तो आपको पता है कि x इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, ये जनरल एक्सप्रेशन है. फिर जब पार्टिकल मीन से स्टार्ट होगा तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा t, अगर वो एक्सट्रीम चल होगा तो x इक्वल टू a कॉस ओमेगा t. तो आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन के लिए, फॉर एक्सट्रीम पोजीशन फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2 और पॉजिटिव एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. तो डोंट गेट कैरिड अवे, अदरवाइज आप बोलोगे नेगेटिव एक्सट्रीम इज 3 पाई बाय 2. तो लिख दो ऐसा यहाँ पे, फॉर पॉजिटिव एक्सट्रीम फाई की वैल्यू आती है पाई बाय 2. तो x की वैल्यू है आपके पास 3, a की वैल्यू है 4, साइन ऑफ ओमेगा. ओमेगा you can find out using 2 pi by time period t into small t. तो फाइंड ही करना है प्लस पाई बाय 2. तो 3/4 साइन ऑफ 2 pi capital T is 4 seconds into t plus pi by 2. So you will have this as 3/4 sine of any angle plus pi by 2 is cos. Okay, cos of 2 pi by 4 is pi by 2 times of t, pi by 2 times of t. So pi by 2 t is cos inverse of 3/4, that is cos inverse of 0.75. So pi by 2 into t, that is 41.4 डिग्री आएगा ये. तो ये आ जाएगा आपका t is equal to 41.4. 41.4 into, you just have to solve this like, because ये रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको. So after you do all these calculations, I mean this is in degrees, then you have to convert it into SI units to obtain time. So that's what I am saying here. Pi by 2, pi by 180. मैं इतना ही बोल रहा हूँ, रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए ही बोल रहा हूँ क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा. तो t is equal to 41.4 multiplied by 2 by 180. So t will turn out to be 41.4 into 2 is 82.8. 82.8 upon 180. Roughly, if I do rough calculations, is like
0.5 से थोड़ा कम, तो 0.46 ये करेक्ट आंसर है हमारे पास वैसे गिवन, राइट। तो मेथड 1 लिटिल लेंथी, मेथड 2 कुछ है ही नहीं। मेथड 2 इज जस्ट you say that the particle is starting from extreme position, hence, so I'll just put it here. Let us say method 2, we know that what we know is for a particle starting from extreme position, starting from positive extreme, let us say x is equal to a cos of omega t, that's it। तो सीधा सीधा तुम इस स्टेप पे आ जाते हो यहाँ से आगे, सिंपल। तो कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास पार्टिकल कहाँ पे है वो देखना जरूरी होता है, दैट्स इट, वेयर द पार्टिकल इज। और उन्होंने पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव, मतलब मीन से 3 सेंटीमीटर पे होगा वो, राइट। तो दैट्स इट, इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle performing linear SHM with a period of 6 seconds is at positive extreme at t equal to 0. The particle is found to be at a distance of 6 centimeter from this position, मतलब from the mean position, from the extreme position x equal to 3 centimeter है, from the extreme distance is 3 centimeter, और 3 centimeter पे कब मिला वो 7 सेकेंड पे। तो वापस बता देता हूँ मैं आपको, ऐसा है, ये हो गया आपका पाथ SHM का। पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है एक्सट्रीम से, पॉजिटिव एक्सट्रीम से, t इक्वल टू 0 पे, राइट। उसके बाद उन्होंने बोला पीरियड 6 सेकेंड है, मतलब गिवन क्वांटिटीज में टाइम पीरियड 6 सेकेंड है। वैसे क्वेश्चन ओरली सॉल्व हो सकता है, बट स्टिल ओके। देन दे आर सेइंग द पार्टिकल इज फाउंड टू बी at a distance of 3 centimeter from this position, मतलब from extreme position the particle is found to be at 3 centimeter, तो x equal to amplitude -3, जैसे लास्ट केस में x equal to amplitude -1 किया था मैंने, यहाँ पे -3, उस केस में 1 सेंटीमीटर पे था फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पे फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम, सिंपल थिंग, राइट। ओके, और ये एट t equal to 7 सेकेंड का सिनेरियो है, राइट। आपको पूछा है कि आपको एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। ये क्वेश्चन एक्सट्रीमली सिंपल है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि वी डोंट हैव टू यूज जनरल एक्सप्रेशंस नाउ। हम डायरेक्टली बोलेंगे वी नो दैट फॉर अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजिशन, फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन, पार्टिकल स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम, we can write directly x equal to a cos of omega t. X is a minus 3 equal to a cos of omega is 2 pi by time period into t. A minus 3 by a cos of 2 pi by 6 time period is 6 and at 7 second ऐसा बोला है, तो ये हो जाएगा a by a minus 3 by a, just I am simplifying it, cos of pi by 3, 7 pi by 3, तो 7 pi by 3 ये आपका आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू स्प्लिट 7 pi by 3, बिकॉज यू नीड टू नो, यू शुड नो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हियर। तो ठीक है, नहीं भी मतलब डजंट मैटर, इट्स ओके। आपको ऐसे एंगल्स को 2 पाई प्लस समथिंग में लिखना होता है, क्योंकि cos इज पीरियोडिक फंक्शन विद अ पीरियड ऑफ 2 पाई, तो हर 2 पाई पे वो रिपीट होता है। तो या तो 2 पाई प्लस समथिंग, या तो 4 पाई प्लस समथिंग, या तो 6 पाई प्लस समथिंग, क्योंकि हर 2 पाई के बाद वो रिपीट होगा। तो हाउ कैन आई राइट इट डाउन? कैन आई राइट इट डाउन लाइक 2 पाई प्लस पाई बाई 3?
तो 3 इंटू 2 पाई इज 6, 6 प्लस पाई इज 7, तो 7 पाई बाई 3 आता है, राइट, करेक्ट। तो 7 पाई बाई 3 को मैंने सिर्फ लिखा है 2 पाई प्लस पाई बाई 3, दैट्स इट। व्हाई? बिकॉज आई नो cos of 2 pi plus theta is cos theta. Okay, so what we know is, यहाँ लिख देता हूँ मैं, otherwise in the next step I'll write it down. 1 minus 3 by a is equal to cos of pi by 3. Why? Since cos of 2 pi plus theta या theta plus 2 pi is cos theta. हर 2 pi के बाद सेम वैल्यू आएगी cos की, right? Therefore 1 minus 3 by a is cos of pi by 3. Cos of pi by 3 is cos of 60. Cos of 60 is half. Okay, so 3 by a is 1 minus half. So 3 by a is half. So a is equal to 6 centimeter. हो गया सॉल्व। मैं वापस बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं। एक्सट्रीम से चालू किया तो x इक्वल टू a cos ओमेगा t आएगा। ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई टाइम पीरियड लिखा है आपने। टाइम पीरियड की वैल्यू पता है 6, t पता है स्मॉल t 7। सिंप्लीफाई करते गए। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ है? cos ऑफ 7 पाई बाई 3। आपको ये पता होना चाहिए कि cos की वैल्यू हर 2 पाई के बाद रिपीट होती है, क्योंकि cos ये पीरियडिक फंक्शन है और उसका पीरियड 2 पाई है। साइन भी पीरियडिक है, उसका भी पीरियड 2 पाई है। तो मैंने सिर्फ cos ऑफ 7 पाई बाई 3 को लिखा cos ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाई 3। तो फिर ये बन जाएगा cos of pi by 3, because that's a trigonometric identity. cos of 2 pi plus theta is cos theta. तो cos of pi by 3 की वैल्यू हाफ आती है, and just simplifying you get a is equal to 6 centimeter. That's it, simple. Next question, let's move to next question. The speeds of a particle performing linear SHM are 8 centimeter and 6 centimeter respectively at displacement of 6 and 8 centimeter. Given, not givens. So given quantity v1 is 8 centimeter per second at x1 equal to 6 centimeter, and v2 is equal to 6 centimeter per second at x2 is equal to 8 centimeter. Right, हमको पूछा है amplitude and period. You are supposed to find out time period t and amplitude a. ओके, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। और फॉर्मूला आप कौन सा यूज करोगे? आई जस्ट टेल यू। फॉर्मूला भाई बहुत इजी है। सो दिस इज v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो v1 बाई v2 कर देता हूँ मैं। तो ओमेगा अंडर रूट ऑफ a माइनस x1 स्क्वायर, तो सेम पार्टिकल है तो इसलिए आप लोगों को a1 a2 नहीं लिखना, एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, ओमेगा a माइनस x2 स्क्वायर, राइट। यू कैन डू दिस। तो ये कैंसिल हो जाएगा। यू विल जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज a फ्रॉम दिस इक्वेशन। v1 आपको पता है 8, ये पता है 6, इसलिए मैंने कन्वर्ट भी नहीं किया क्योंकि ये दोनों सेम यूनिट्स में थे। अंडर रूट a minus x1 is 6 square and under root a minus x2 is 8 square. This is like 4 by 3. So this is a minus 36 upon a minus 64. फिर आप स्क्वायर कर लोगे तो 16 by 9 is equal to a minus 36 a minus 64. You will have to simplify this and solve this to find out value of a. So 16a minus 64 into 16, 9a minus 36 into 9, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो 16 minus 9a, that becomes 7a, and this is like 64 into 16 minus 36 into 9. ये आप सिंप्लीफाई कर लो, जो भी कॉमन निकलता है वो कॉमन निकाल के you can just simplify, okay, and solve it. तो a की वैल्यू आपको सब सॉल्व करने के बाद 10 सेंटीमीटर की मिलनी चाहिए। You should get 10 सेंटीमीटर, okay. अब
हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये a की वैल्यू v1 या v2 के इक्वेशन में यूज कर सकते हैं एंड वी कैन फाइंड आउट ओमेगा. ओके, यूजिंग a equal to 10 centimeter in v1 equal to omega under root of a minus x1 square. v1 हमको पता है 8, ओमेगा फाइंड करना है, ये 10 है, 10 का a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है वो. तो आई एम सॉरी फॉर दिस, दिस इज समथिंग दैट इज वेरी ट्रिवियल. ये a स्क्वायर होता है, आई मिस्ड a स्क्वायर, so I just have to put a square, a square, a square and a square and let us solve it. Anyways, तो फिर कोई इशू नहीं है, वो सॉल्व कर सकते हो आप. तो a की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आएगी आफ्टर डूइंग ऑल दिस. ओके, तो यहाँ पे भी a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर मतलब 100 क्योंकि 10 सेंटीमीटर आया था. x1 मतलब 6 स्क्वायर इज 36. ओके, तो 8 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ 64. सो दैट इज सिंपल थिंग. ये आपका 8 आएगा वापस से. ओके, देन यू विल गेट ओमेगा एस 1. हमको क्या चाहिए था, पीरियड एंड एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड तो हमको मिल गया, बट टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा. ओके, सो 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 1 है, तो 2 पाई बाय 1, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो 6.28 सेकेंड आ जाएगा. मैं वापस बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन में हमको करना क्या होता है, v1 दिया है, v2 दिया है, x1 और x2 दिया है, तो दोनों का रेशियो ले लो, उससे आपको एम्पलीट्यूड मिल जाएगा. तो वन पार्ट इज सॉल्व्ड, यू हैव एम्पलीट्यूड. इन सेकंड पार्ट पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन ईदर v1 और v2, दोनों में से कहीं भी डाल सकते हो, आंसर सेम आने वाला है आपका. तो यू विल गेट ओमेगा, और ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा. दैट्स इट, सिंपल थिंग. ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The maximum velocity of a particle performing SHM is 6.28 centimeter per second. If the length of path is 8 centimeter, calculate its period. तो सबसे पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए. एक, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है और मैक्सिमम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है. दूसरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेंथ ऑफ पाथ. दो चीजें पता होनी चाहिए आपको. सो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, Vmax which is a omega mean पोजीशन पे मैक्सिमम होता है, और दैट इज a omega, दैट इज 6.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड. फर्स्ट थिंग इज दिस. दूसरा, लेंथ ऑफ पाथ मतलब 2a, मतलब क्या, बेसिकली a से b. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए दैट लेंथ ऑफ पाथ मतलब a से b का डिस्टेंस को बोलते हैं लेंथ ऑफ पाथ. तो a plus a, that is length of path. So length of path is 2a, that is 8 centimeter. So a is equal to 4 centimeter. मतलब इतना तो दिया है, सिंपल है. आपको क्या फाइंड करना है, what is supposed to find out is period. तो टाइम पीरियड चाहिए, मतलब ओमेगा चाहिए, ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड मिल जाता है. एनीवेज, therefore we know that Vmax is a omega, और Vmax की वैल्यू दी है 6.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड. a ओमेगा, a की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, तो मैं सेंटीमीटर पर सेकेंड और ये कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज Vmax इज सेंटीमीटर पर सेकेंड, a इज इन सेंटीमीटर, ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड. बस इसको सॉल्व करना है आपको, दैट्स इट. सो t इज इक्वल टू 8 पाई अपॉन 6.28. दैट्स इट. You just have to solve this thing, or this is nothing. क्यों nothing? 8 into 3.14 upon 6.28. 1 2 1 4, तो टाइम पीरियड इज 4 सेकेंड. तो Vmax इक्वल टू a ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड, और लेंथ ऑफ पाथ मतलब एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम डिस्टेंस होता है, मतलब 2a is equal to 8 सेंटीमीटर, मतलब a equal to 4 सेंटीमीटर है, एंड देन that's it. You get time period as 4 seconds. That's it. Simple. All right. Let's move to next question. It was a very simple question. Next is
Again simple. The maximum speed of a particle performing SHM is 0.08 meter per second. So Vmax, which is already a omega, as we have seen in the last question, that is 0.08 meter per second. If its maximum acceleration is 0.32 meter per second square, तो आपको पता होना चाहिए a max की वैल्यू क्या होती है और कितनी होती है. उसका फॉर्मूला होता है a omega square और कहाँ होती है. Maximum acceleration is always at extreme position, by the way, that is 0.32 meter per second square. आपको फाइंड करने के लिए बोला है period and amplitude. So you're supposed to find out time period and you're supposed to find out amplitude. बहुत easy है. ऐसे questions में हमेशा you just take ratio, that's it. तो मैं a max upon v max ले लेता हूँ क्योंकि मुझे a max v max की स्पीड पता है, फॉर्मूला भी पता है. A omega square upon a omega. Okay, and we know this is 0.32 upon 0.08. So a cancel, omega cancel. So omega is nothing but 0.32 upon 0.08 is 4. So we already know what is omega. Therefore, 2 pi by t is 4. Therefore, t is equal to 2 pi by 4. That is pi by 2. 3.14 by 2 is 1.57 seconds. ये आ गया आपका टाइम पीरियड. अब वैसे ओमेगा की वैल्यू भी हमारे पास थी, तो ओमेगा की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता या टाइम पीरियड की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करता इन ए मैक्स और वी मैक्स, तो मुझे ए मिल जाएगा. तो आई विल प्रिफर कि मैं वी मैक्स में सब्स्टिट्यूट करूं क्योंकि वी मैक्स इज सिंपल ना, ए ओमेगा. ए मैक्स में ए ओमेगा स्क्वायर है. तो वी मैक्स विच इज a omega which is 0.08. So a is equal to 0.08 by omega and omega is 4 already. So 0.08 by 4. तो ये आपको आएगा 0.02 मीटर. तो a is equal to 2 सेंटीमीटर. तो 2 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड है. ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ a max मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन पता होना चाहिए. आई हैव टेकन दिस जब मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम सिखाया था, और उससे पहले भी हमने लिखा था एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. तो जस्ट रेशो लेना है, आपको ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा से आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा. फिर यही ओमेगा की वैल्यू या टाइम पीरियड की वैल्यू वी मैक्स या ए मैक्स में सब्स्टिट्यूट करके यू कैन फाइंड आउट टी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सट्रीमली सिंपल. Describe the state of oscillation if the phase angle is 1110 degree. आपको अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है तो आई हैव टोल्ड यू दैट जब मीन से एक्सट्रीम पे जाएगा पॉजिटिव एक्सट्रीम बी तो 90 डिग्री का एंगल कौन होता है पाई बाई 2. फिर वापस से मीन पे आया तो और 90 डिग्री 180. फिर वापस लेफ्ट एक्सट्रीम पे गया तो और 90 डिग्री दैट इज 270. एंड अगेन बैक टू मीन इज 360. तो जहां से स्टार्ट हुआ वापस वहां पे आया, मतलब 360 डिग्री का एंगल कवर हुआ है. हमको यहाँ पे टोटल एंगल दिया है 1011 मतलब 1110 डिग्री का. तो कभी भी व्हाट यू हैव टू डू इज, जब आपको स्टेट पूछा होगा तो आपको ये देखना है कि कौन से नंबर का ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है पार्टिकल. देखो मतलब पहले ऑसिलेशन में 360 डिग्री कवर करके वापस मीन पे आया, फिर और 360 मतलब 720, तो 2 ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, वापस मीन पे आया, फिर और 360. यू जस्ट गो हैव टू कीप ऑन एडिंग 1080 डिग्री, वापस मीन पे आया, राइट. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट डाउन लाइक 1080 डिग्री प्लस 30 डिग्रीज. तो दैट इज 3 into 360 प्लस 30 डिग्री, राइट. इसका मतलब 3 ऑसिलेशन कंप्लीट हो गए. पार्टिकल फोर्थ ऑसिलेशन में है, एट अ फेज एंगल ऑफ 30 एंड द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजीशन, राइट. ओके, तो also what we know is the particle starts or the particle started its motion from mean, from
mean position. Therefore what we know is, therefore x is equal to, you know this, a sin omega t, but omega t is 30 डिग्री क्योंकि ये 30 डिग्री है. ओके, सो a sin 30, sin 30 is half, मतलब x इक्वल टू a by 2. मतलब पार्टिकल 1110 डिग्री कवर करने के बाद हाफ एम्पलीट्यूड पे है. इट इज समवेयर हियर, राइट. देयरफॉर द पार्टिकल is at x equal to a by 2 during its fourth oscillation. मैं वापस बता देता हूँ. तो ये हो गया स्टेट ऑफ पार्टिकल. स्टेट ऑफ पार्टिकल का मतलब इतना ही है, कौन से नंबर का ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है और उसका पोजीशन क्या है. तो 1110 डिग्री को मैंने लिखा 1080 प्लस 30. तो 1080 मतलब 3 टाइम्स ऑफ 360, मतलब 3 ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुके हैं. पार्टिकल चौथे में है. पार्टिकल इज परफॉर्मिंग फोर्थ ऑसिलेशन, राइट. अब सिर्फ इतना था कि फोर्थ ऑसिलेशन में कहाँ पे है. तो हमको पता है अगर पार्टिकल मीन से स्टार्ट करता है तो x इक्वल टू a sin ओमेगा टी. और sin ओमेगा टी मतलब वो एंगल दिया है आपको, एंगल दिया है ना 1110, राइट. तो ओमेगा टी की वैल्यू अगर 1110 डालोगे तो भी आंसर वही आएगा, बिकॉज साइन इज पीरियोडिक. हर 360 के बाद साइन की वैल्यू सेम होती है. तो 360 प्लस 360 प्लस 360 1080 प्लस 30. तो साइन ऑफ 6 पाई प्लस 30 या फिर साइन ऑफ 1080 प्लस 30 इज साइन 30. तो फर्क नहीं पड़ता बेसिकली वो. ओके, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं लिख देता हूँ. आई विल जस्ट इंक्रीज वन स्टेप हियर if it makes things more clear for you. A sin of 1110, that is a sin of 1080 plus 30, that is equal to a sin of 3 times of 360 plus 30. So sin of 2 pi plus theta is sin theta. Sin of n times of 360 plus theta is sin theta. तो a sin 30 ऐसा आता है वो. So a by 2. So particle is performing fourth oscillation, and at this particular instant of time, the particle is at x equal to a by 2. None.